This is Naman Mittal welcoming you all back to another session of Must Read Current Affairs. Date of the day is 12th of February 2021, and we shall be seeing all the articles which are important and relevant from the exams perspective. So let us begin this particular session of the day. And to all the new learners who have got associated with us for the very first time, please allow me to introduce to them few of the benefits of an academy subscription. First, if you take an academy subscription, you get unlimited access to all the courses of the educator and their live classes, or you also get an opportunity to attend daily live classes out here. So this provides you the classes on the real time manner, जिससे आप interact कर सकते हैं, engage कर सकते हैं with the faculty. Also there are live test and doubt clearing sessions जो ensure करते हैं कि आपका proper assessment होता रहे और कोई भी gray area ना बचे of yours during this preparation of civil services examination. You can easily take an academy subscription by downloading an academy's learning app, after which you will be offered with two kinds of subscription. One would be plus and second would be iconic subscription. If you go for the plus subscription, there are multiple duration plans ranging from 1 month to 36 months. You can opt for the annual subscription plan, which will cost you 49,500 rupees. You can avail extra 10% off by applying my code NAMAN, and the final price then would be reduced to 44,550 rupees. If you opt for the iconic subscription, it is a bit expensive as it has certain additional advantages like that of personal coach, mains question answer practice, study planner, personalized feedback, and so on. Annual price of the iconic subscription is 69,500 rupees. You can here avail again 10% off by applying my code NAMAN, and the final price then would be reduced to 62,550 rupees. ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन अगर आपको चूज करना है तो यहाँ पे भी मल्टीपल ड्यूरेशन प्लान्स अवेलेबल हैं रेंजिंग फ्रॉम 1 month to 36 months. You can go for the annual plan here as well, 27,500 rupees. You can avail 10% off by applying my code. The final price then would be 24,750. Unacademy Combat में आप सब लोग participate कर सकते हैं. The next Unacademy Combat is going to take place on the 14th of Feb, and this provides you opportunity not only to win few of the exciting prizes but also to assess yourself at the pan India level, because ये prelims oriented pan India level पे एक test series है जिसमें आप free of cost participate कर सकते हैं. राइट, सो लेट अस कम ऑन टू द आर्टिकल्स ऑफ द डे. आज के जो आर्टिकल्स हैं वो उतने ज़्यादा डीप नहीं है, बट ठीक है, जो भी आज आर्टिकल्स हैं उसमें से कुछ ना कुछ हमें वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है. कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो हमने पहले डिस्कस नहीं करे थे, बजट से रिलेटेड है, तो वहाँ पे भी हम थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे. द फर्स्ट आर्टिकल हियर टॉक्स अबाउट आरबीआई's प्रपोजल टू ओपन अप G-Secs इवन नाउ फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स. तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आरबीआई ये प्लान कर रही है दैट इट विल ओपन अप द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे निटिग्रिटीज पूछी जा सकती हैं इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तो आपकी स्टैंडर्ड इकोनॉमी बुक्स या जहाँ से भी आपने इकोनॉमी पढ़ी है वहाँ पे आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में बेसिक्स ऑलरेडी दिया गया है. तो उसको एक बार क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं और इसका एप्लीकेशन आप मेंस में कैसे करेंगे, इसके फॉलोआउट्स क्या हैं. ऑल्दो इसका जो लार्जली फॉलोआउट है वो एक या दो ही हैं, बट दोज आर इंपॉर्टेंट, तो उनको भी हम अंडरस्टैंड कर लेंगे फ्रॉम मेंस एंड इंटरव्यू परस्पेक्टिव. तो पहले अगर मैं बेसिक्स की बात करूं, व्हाट आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर बेसिकली द डेट इंस्ट्रूमेंट्स, और यू कैन कॉल देम एज द गवर्नमेंट बॉन्ड्स. So government issue these bond papers and you purchase these bond papers. गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, गवर्नमेंट उस पैसे को फिर यूज करती है फॉर द इंफ्रा डेवलपमेंट, फॉर द सोशल वेलफेयर बेनिफिट एंड सो ऑन. आपको गवर्नमेंट को पैसा देके क्या मिलता है, यू गेट इन रिटर्न सर्टेन इनकम ईदर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट और इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट विच वॉज प्रोवाइडेड टू यू एट द फेस वैल्यू. थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे. there are two kinds of bonds basically, or the G-Secs. G-Secs की बात करें, bonds की नहीं. There are two kind of G-Secs. One is short term government securities and another is long term government securities. अब short term कितना short है और long term कितना long है. So short term securities में the maximum tenure is 1 year. So there are no government securities in the short term bonds or the short term securities which are more than 1 year, and long term mein all the securities are at least more than 1 year. That is the maximum tenure. The minimum tenure in the long securities starts from 1 year. Short term securities mein the securities are T-bills, also called as treasury bills. तो ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल्स बेसिकली जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं. अब जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं, सो दीज आर द बॉन्ड्स विच डू नॉट अट्रैक्ट और विच डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट.
अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है. देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन दीज काइंड ऑफ बॉन्ड्स? So the benefit is that these bonds are offered at a discount at फेस वैल्यू. तो अगर एक बॉन्ड है जिसकी कीमत है 100 रुपए, तो गवर्नमेंट उसको आपको ऑफर करेगी से फॉर एग्जांपल एट 98 रुपीज. एंड व्हाट विल यू गेट आफ्टर 1 ईयर? क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है, जो मैक्सिमम टेन्योर है टी बिल का, वो 1 ईयर है. 91 डेज के आते हैं टी बिल, 182 डेज के आते हैं और 364 डेज के आते हैं. 3 टी बिल्स गवर्नमेंट रिलीज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. सॉरी, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टी बिल्स को रिलीज नहीं करती है. तो आपने 98 रुपीज में खरीदा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको 2 रुपए का डिस्काउंट दिया था ऑन द फेस वैल्यू. And on the maturity, what will you get? You will get this face value. So you have earned 2 rupees on the investment of 100 rupees, right? On the investment of basically 98 rupees. So the interest rate that you have got or the profit that you have booked is more than 2%, right? So this is the T-bill. Zero coupon bond, no interest rate. Are they tradable? Yes, they are tradable. You can even trade them in the secondary market, in the money market. Apart from this, no interest rate is given and these are offered at a discount rate on the face value. ठीक है. इसके अलावा कोई और भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट सिक्योरिटीज है जो हमें पता होनी चाहिए? यस, देन एक और शॉर्ट सिक्योरिटी है विच इज कॉल्ड एज कैश मैनेजमेंट बिल्स, CMB. ये एक नई शॉर्ट सिक्योरिटी है जो गवर्नमेंट ने रिलीज करी है. एंड हियर द आइडिया ऑफ द गवर्नमेंट इज to mobilize finances for the mismatches in the daily cash flows of the government. तो गवर्नमेंट के जो डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं, जब उसमें मिसमैचेस होते हैं, उनको प्लग करने के लिए इस पर्टिकुलर कैश मैनेजमेंट बिल को गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा है. इसका टेन्योर क्या होता है? तो इसका टेन्योर 91 डेज से कम का होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज वेरी मच सिमिलर टू दीज टी बिल्स. तो ये भी जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, इस पे भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. दे आर ऑल्सो ऑफर्ड एट अ डिस्काउंट ऑन द फेस वैल्यू एंड ऑन द मैच्योरिटी यू विल गेट द फेस वैल्यू, राइट? सो दीज आर द टी बिल्स और द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज. ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करती है, स्टेट गवर्नमेंट इसको रिलीज नहीं करती है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज. तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को हम बोलते हैं, इनका जो ऑफिशियल वर्ड है दैट इज डेटेड सिक्योरिटीज. Now dated securities will be having a minimum tenure of 1 year. जनरली जो इनका टेन्योर होता है वो 5 to 40 years के बीच में होता है. एंड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है. सो दीज आर नॉट प्रोवाइडेड एट अ डिस्काउंट ऑन द फेस वैल्यू, बट यू गेट हियर अ कूपन रेट. कूपन क्या होता है? कूपन इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट रेट. तो कूपन रेट आपका, अगर कोई बोलता है दैट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग 5% कूपन रेट ऑन द डेटेड सिक्योरिटी, तो यहां से क्लियर होना चाहिए आपको कि डेटेड सिक्योरिटी मतलब लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. कूपन रेट का मतलब है 5% मुझे इंटरेस्ट मिलेगा. एंड दिस इंटरेस्ट, व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट इट इज इट फिक्स्ड और इज इट फ्लोटिंग? सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट. अलग अलग इसमें टाइप्स होते हैं. फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे भी गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज रिलीज करती है. फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे भी गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज रिलीज करती है. तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए. एंड यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व होती हैं. तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी डेटेड सिक्योरिटीज इशू कर सकती हैं एंड दीज आर कॉल्ड एज स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स, SDL इनको बोला जाता है. नाउ वाई G-Secs आर कॉल्ड एज गिल्ट एज सिक्योरिटीज. तो गिल्ट एज सिक्योरिटीज के पीछे बेसिक रीजन ये है कि क्योंकि इसे गवर्नमेंट बैक कर रही है, देयर इज अ सॉवरेन बैकिंग बिहाइंड दीज सिक्योरिटीज, बिहाइंड दीज बॉन्ड्स. So it is generally understood that there is practically no default on these kind of investments. अगर आप इस पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट फेल हो जाएगा, उस पर डिफॉल्ट कर देगी गवर्नमेंट. There are absolutely practically, if I talk in the practical terms, then there are no risk of such kinds, and so they are gilt edged, most secure kind of investment. अभी तक जो गवर्नमेंट अलाउ करती थी. अच्छा, एक चीज और, डेटेड सिक्योरिटीज को हैंडल करने के लिए एक ऑफिस बनाया गया है, पब्लिक डेट ऑफिस.
which is under the RBI. So it acts as a registry and depository of the dated securities, right? ठीक है. इसके अलावा अभी हम बात कर रहे थे कि इसको आरबीआई अब ओपन करने की बात कर रही है टू द रिटेल इन्वेस्टर्स एज वेल. तो अभी तक ये किसके लिए ओपन था? सो फॉर नाउ it was open to only the institutional investors in the sense mutual funds, insurance funds, pension funds, banks. These are the institutional investors. तो इनके लिए जी सेक्स अभी तक अलाउड थे, वो इसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते थे, बट इट वॉज नॉट अलाउड और ओपन टिल नाउ फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स. तो इसके पीछे आइडिया क्या है? अब रिटेल इन्वेस्टर्स को हम क्यों एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं दैट यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इनटू जीसेक. इसमें इस आर्टिकल में काफ़ी सारी डिटेल्स हैं जिसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, द मोस्ट रिलेवेंट थिंग्स. तो द आइडिया बिहाइंड दिस इज कि एक तो आप लोगों को एक सेफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो, राइट? पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, government has set the target of achieving the fiscal deficit of 4.5% in the next six years. इसके साथ गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है, जो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है ओवरऑल, वो काफ़ी हद तक शॉर्ट अप हुआ है. इट हैज़ सिग्निफिकेंटली राइजन अप एंड गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बोरो 12 लाख रुपीज. अब गवर्नमेंट को ये पैसा कहाँ से गवर्नमेंट बोरो करेगी? So if government opens up, if the RBI opens up the GSEC securities to the common people, to the retail investors, so for the government it becomes very easy to mobilize these finances and meet its target of 12 lakh crore borrowing. जो 12 लाख करोड़ की बोरोइंग करनी है वो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ईजी हो जाती है, राइट? अब यहाँ पे हम लिमिटेशंस की अगर बात करें, सो व्हाट आर दी लिमिटेशंस? फर्स्ट लिमिटेशन इज कि अगर गवर्नमेंट इसको ओपन करती है, गवर्नमेंट अगर रिटेल इन्वेस्टर्स को ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, देन देयर कैन बी क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो क्राउड आउट हो सकता है. क्राउड आउट इन द सेंस इट कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज नाउ पीपल वुड नॉट बी इन्वेस्टिंग इन द प्राइवेट सेक्टर बट वुड बी गोइंग टूवर्ड्स द जीसेक सेक्टर. व्हाई? बिकॉज इट इज द मोस्ट सिक्योर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. और अभी जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, अभी जो बॉन्ड के रिटर्न्स हैं, दोज आर एक्सेप्शनली हाई बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स. तो लास्ट ईयर की मैं बात करूं कि कितना जीसेक ने रिटर्न प्रोवाइड किया था, तो इट वाज अराउंड 15% इन 1 ईयर. सो विथ सच अ हाई इंटरेस्ट रेट it becomes an attractive option for the retail investors and this can easily crowd out the private investment. तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमी को पुश देने के लिए और गवर्नमेंट को यहाँ पे अपना रोल को मिनिमाइज करने की ज़रूरत है. सो दिस इज़ अ कंसर्न आउट हियर. इसके अलावा जो सेकेंड कंसर्न है वो ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स डू नॉट हैव द एक्सपर्टीज अबाउट दीज जीसेक्स एंड देयर मूवमेंट इन द मार्केट. जब इनकी ट्रेडिंग आप अलाउ करते हो तो वो ट्रेड मार्केट में, मनी मार्केट में कैसे मूव करता है उसकी एक्सपर्टीज अगर हम एक्सपेक्ट करें कि एक रिटेल इन्वेस्टर को होगी, सो वी आर रॉन्ग. एंड जीसेक्स आर हाईली वोलेटाइल. अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें एंट्री ले रहे हो, देन दीज are highly volatile because of the sensitivity that these GSECs have related to the interest rates. As they are directly related to the interest rates, तो जैसे ही interest rates फ्लक्चुएट करते हैं वैसे ही वॉलेटिलिटी जीसेक्स में भी आपको देखने को मिलती है. सो इट कैन बी डिट्रीमेंटल फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स एंड इट हैज़ बीन एडवाइज्ड बाय द फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कि अगर रिटेल इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेने की कोशिश करता है इन द जीसेक, देन दे शुड गो थ्रू द म्यूचुअल फंड्स रूट. काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो जीसेक में गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं अपना अमाउंट. तो आप उन म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज दे हैव दैट एक्सपर्टीज हाउ टू टेक केयर ऑफ द एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी ऑफ दीज मार्केट्स.
Second thing is, if you want to invest for the longer tenure, for the longer duration, then it is a very good option. अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करना है, say for example 20 years, 30 years, so it is a very good it is a very good option for the investors out here. इसके साथ इसका एक फ़ायदा और है, जो लिमिटेशंस में, अभी हम क्या लिमिटेशंस की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे एकदम से याद आया कि एक मैंने पॉइंट मिस कर दिया है बेनिफिट का, तो आप वो बेनिफिट में एक पॉइंट लिख लीजिए, दैट बाय ओपनिंग द G-Secs टू द रिटेल इन्वेस्टर्स इट विल ऑफर अ हेल्दी कॉम्पिटिशन टू द फिक्स्ड डिपॉजिट्स and other alternative investments, especially the investments of longer tenure. तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो हैं उनको एक बेटर कंपटीशन मिलेगा. जब बेटर कंपटीशन मिलेगा तो यहाँ पे बेटर इंटरेस्ट रेट्स भी ऑफर किए जाएंगे. एज ऑफ नाउ फिक्स्ड डिपॉजिट्स में कितने इंटरेस्ट रेट ऑफर होता है? एनीवेयर बिटवीन 4 to 6%, विच कैन इजीली बी इंक्रीज्ड, और लोगों के यहाँ से इनकम इंक्रीज होगी, वेज इंक्रीज होगी बेसिकली, राइट? ठीक है. इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक और यहाँ पे एडवांटेज है. द नेक्स्ट एडवांटेज इज कि जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, देयर मैक्सिमम टेन्योर इज ऑफ 10 ईयर्स. तो 10 ईयर्स के बाद आपको अपना पैसा निकालना पड़ता है, बिकॉज दे गेट इट गेट्स मेच्योर. सो 10 ईयर इज द मैक्सिमम मेच्योरिटी टाइम ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट. अब यहाँ पे रिस्क आती है ऑफ री इन्वेस्टमेंट, जिसको बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क. तो आपने पैसा 10 साल बाद आपने निकालना है, बिकॉज इट हैज गॉट मैच्योर्ड. नाउ यू आर एट अ रिस्क ऑफ री इन्वेस्टिंग दैट मनी अगेन इनटू सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम, whereas this reinvestment risk is not there in the G-Secs, because इनका टेन्योर कितना है? इनका टेन्योर अप टू 40 ईयर्स तक होता है. तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क यहाँ पे नहीं होती है जनरली. तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए फ्रॉम द G-Secs परस्पेक्टिव, और इससे ज़्यादा डिटेल में आप मत जाइएगा. अगर यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, तो मैंने आपको मेंस में आपको क्या पॉइंट्स बताने हैं वो बता दिए. क्राउडिंग आउट इफेक्ट बता सकते हैं आप. इसकी हाई वोलेटिलिटी है, तो अगर रिटेल इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, देन हिज और हर मनी कैन बी एट अ रिस्क. इसके अलावा आप लॉन्गर ड्यूरेशन में इसको सपोर्ट कर सकते हैं. गवर्नमेंट कैसे सोर्स करेगी अपनी बोरोइंग नीड्स, उसके लिए आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं, राइट? So these are some of the important points. आगे बढ़ते हैं to our next article. Our next article here talks about the Accessible India campaign. Now this campaign, also called as the Sugmaya Bharat Abhiyan, was launched in the year 2015. We basically were trying to adhere with our international commitments made under the convention, International Convention on the Persons with Disabilities, जहाँ पे certain कमिटमेंट्स थे, जहाँ पे सर्टेन प्रोविजंस हैं उस इंटरनेशनल कन्वेंशन के, लाइक यू नीड टू मेक द ओवरऑल एनवायरनमेंट मोर कंड्यूसिव एंड एक्सेसिबल टू द पीपल विथ और पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज इन आवर कंट्री. तो उसी रिस्पेक्ट से, उसी अप्रोच के साथ ये कैंपेन को लॉन्च किया गया था. एंड देयर वर सर्टेन टारगेट्स जो सेट किए थे गवर्नमेंट ने. देयर वर मेजरली 5 टारगेट्स एंड 3 कॉम्पोनेंट्स. 3 कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं, तो द फर्स्ट कंपोनेंट हियर वाज टू बिल्ड एनवायरमेंट एक्सेसिबिलिटी. दिस वाज द फर्स्ट कंपोनेंट. सेकंड कंपोनेंट वाज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक्सेसिबिलिटी, एंड थर्ड कंपोनेंट वाज आईसीटी इकोसिस्टम एक्सेसिबिलिटी. तो एनवायरमेंट में हमें एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करनी है टू द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमें एक्सेसिबल बनाना है, और आईसीटी सिस्टम हमें एक्सेसिबल बनाना है. ट्रांसपोर्टेशन में हम 3 एरियाज की बात करते हैं. एक है एयरपोर्ट, एक है रेलवेज, और तीसरा है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज बसेस, मेट्रोज एक्सेट्रा. जब हम एनवायरनमेंट एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, तो एनवायरनमेंट एक्सेसिबिलिटी में हमें हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गई, राइट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए. ये जो एनवायरनमेंट है इसको एक्सेसिबल बनाना है टू दी पर्सन विथ डिसेबिलिटी. जब हम आईसीटी सिस्टम की बात करते हैं, तो ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी हमें प्रोवाइड करनी है टू दी पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी. ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी मेजरली फॉर द गवर्नमेंट वेबसाइट्स, फॉर अगेन द ऑनलाइन एजुकेशनल पर्पसेस एक्सेट्रा.
तो ये 3 मेजर कंपोनेंट्स थे। इन 3 मेजर कंपोनेंट्स के रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने 5 टारगेट्स अपने फिक्स करे। 5 टारगेट थे कि हमें पहला टारगेट था कि 50% गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को हमें एक्सेसिबल बनाना है इन द नेशनल कैपिटल एंड ऑल द स्टेट कैपिटल्स। इसके अलावा 25% पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को हमें एक्सेसिबल बनाना है टू दी पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। इसके बाद गवर्नमेंट का टारगेट था कि 50% हमें गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को एक्सेसिबल बनाना है फॉर द PWDs। And government here also talked about accessibility audit mechanisms कि गवर्नमेंट एक्सेसिबिलिटी ऑडिट मैकेनिज्म्स रन करेगी कि क्या आपने बिल्डिंग्स को एक्सेसिबल बनाया, जहां नहीं बनाया वहां आपको रीजन स्टेट करना पड़ेगा, और जहां बनाया है वहां 50% को हम कन्वर्ट कर देंगे टू 100% टारगेट कि अब आपने 50% अचीव कर लिया, अब नेक्स्ट टारगेट है आपका 100% आप अचीव करो। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक और टारगेट बनाया था कि हम ऑल ओवर इंडिया 10 सिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे एंड इन 10 सिटीज़ में हम 100% एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे इन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो ये सर्टेन टारगेट्स गवर्नमेंट ने सेट करे थे। ये टारगेट्स अचीव करने थे बाय द ईयर 2018, बट हमने इन्हें अचीव नहीं किया, इन्हें हमने एक्सटेंड किया इन द ईयर 2020, इन द ईयर 2019 टू 2020 हम फिर से अचीव नहीं कर पाए और अब हमने इसको इंक्रीज कर दिया है टू 2022। तो ये जो आर्टिकल है ये एक लिमिटेशन शो करता है। अगर आपको एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के ऊपर कुछ पॉइंट्स बताने हैं स्पेशली इन द इंटरव्यू स्टेज, बिकॉज मेंस में डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं इन द एग्जामिनेशन इन द एसए GS1 और GS2, बट यूपीएससी के एंड से डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन द एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन नहीं आने वाला है एक्सेप्ट इन द इंटरव्यू स्टेज। तो उसके लिए एक फैक्ट है यहाँ पे कि अभी क्या टारगेट हमने अचीव करा है। तो यहाँ पे बस या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का जो टारगेट था 25% का, उसमें से सिर्फ 7% हमने अचीव करा है, जबकि ओरिजिनल डेडलाइन 2018 की थी। तो ये क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट का बेसिकली, दैट्स इट। ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ पे नहीं जाना है, ज़रूरत ही नहीं है बेसिकली। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आपको देखना है कि एक्सेसिबल इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है। सो इट इज़ टू प्रोवाइड बैरियर फ्री एंड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू दी PWDs launched by the Ministry of Social Justice and Environment by the Department of Persons with Disability. That's it. Okay. Very good proposal has come up from the Ministry of Transport with respect to the EVs. तो EVs के ऊपर हमने डिटेल में डिस्कशन करा है कि EVs को लेके इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे भी सर्टेन टारगेट्स हैं गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट अचीव नहीं कर पाई है। गवर्नमेंट ने नए टारगेट्स रोल आउट करे हैं, लाइक बाय 2030 हमें 30% EVs को लॉन्च करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करना है, एंड वी हैव टू रिप्लेस द कन्वेंशनल व्हीकल्स बाय 2030 एटलीस्ट बाय 30%। तो ऐसे कुछ सर्टेन टारगेट्स गवर्नमेंट ने लॉन्च करे हैं, लेकिन हमने देखा कि अगर आपको EVs को रोल आउट करना है देन देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर यू नीड टू फंक्शन और वेयर यू नीड टू एम्फसाइज अपॉन। क्या है वो एरियाज? पहला है कि EVs के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू प्रायोरिटाइज द sector, that is whether you will be going for the private sector or the public transportation sector. So we discussed that आपको public transportation sector को पहले emphasize करना है rather the retail consumers। अगर गवर्नमेंट मुझको बोलती है, मुझे इंसेंटिवाइज करती है कि मैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लूँ, तो मैं नहीं खरीदूंगा बिकॉज मेरे शहर में चार्जिंग स्टेशंस नहीं दिखते हैं, बैटरी के रेट्स बहुत हाई हैं, रिसाइकलिंग नहीं अवेलेबल है, और ये सारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। इसके साथ अगर गवर्नमेंट एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को बोलती है कि आपको कंपल्सरली अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनानी है, तो वो भी शायद पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पास ना अभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ना उसके पास कैपेसिटी है टू डेवलप द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो द बेस्ट अप्रोच इज कि पहले गवर्नमेंट खुद कंज्यूमर बने ताकि हम एक मार्केट क्रिएट कर सकें ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एंड we need to provide a transition to the automobile sector of our country from the conventional vehicles to the 100% electric vehicles via hybrid vehicles,
तो बीच में एक हाइब्रिड व्हीकल्स को आप ऐड कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने किया भी है, और ये आपको अप्रोच में एम्फोसाइज करना है कि अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करते हैं कि यू फर्स्ट गो फॉर दी हाइब्रिड व्हीकल्स, तो हाइब्रिड व्हीकल्स में होता क्या है कि व्हीकल कन्वेंशनल फ्यूल के साथ साथ बैटरी ऑपरेटेड भी रहती है। तो यहाँ से आप टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे अपग्रेड कर सकते हैं, यू गेट द सफिशिएंट टाइम। अकॉर्डिंगली आपके वर्कर्स भी स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं बिकॉज दे ऑल्सो गेट द सफिशिएंट टाइम। इसके साथ रिटेल कंज्यूमर जो है उसको भी टाइम मिलता है टू अडेप्ट टू द न्यू काइंड ऑफ व्हीकल्स, टू द न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। और बिहेवियर नजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो एज टू एंश्योर एक्सेप्टेंस ऑफ दीज व्हीकल्स। तो पहले आपको ट्रांजिशन में हाइब्रिड व्हीकल्स पे एक रेस्ट लेना है एंड देन यू हैव टू मूव ऑन टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट। This news is from the Indian Express, not the Hindu newspaper. Previous articles were from the Hindu newspaper. तो ये हमारी पहली अप्रोच है जहां हमें एम्फसाइज करना है। और दूसरा, गवर्नमेंट को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को पहले पुश प्रोवाइड करना है बिकॉज वो लार्ज बल्क ऑर्डर्स होंगे। लाइक आपको एटलीस्ट जैसे हमने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन में देखा, तो गवर्नमेंट वैसे ही टारगेट्स यहाँ पर रिलीज कर सकती है कि नेशनल कैपिटल और सारे स्टेट कैपिटल्स में हमें एटलीस्ट 25% पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिप्लेस करना है। तो बल्क ऑर्डर्स जब जनरेट होंगे तो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी आएगा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी होगा एंड सो ऑन। सेकेंड, यू हैव टू एम्फसाइज ऑन दी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट नहीं कर पाए तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वुड नॉट बी रोल्ड आउट और एक्सेप्टेड बाय द रिटेल कंज्यूमर। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना अब थोड़ा सा डिफिकल्ट चैलेंज है यहाँ पे, बिकॉज अगर आप किसी को एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन करने के लिए बोलते हो एंड देयर आर नो व्हीकल्स फ्लाइंग ऑन द रोड, देन व्हाई एन इन्वेस्टर वुड बिड फॉर अ पर्टिकुलर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले आना जरूरी है दैन दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल पहले रोड पे आएगी, उसको चार्जिंग इंफ्रा नहीं मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, सो दैट इज नो यूज। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं मिलेंगी तो वो भी अपने प्रॉफिट मार्जिन्स के अकॉर्डिंगली फंक्शन नहीं कर पाएगा। सो हियर गवर्नमेंट नीड्स टू इंसेंटिवाइज and balance the approach of creation of charging infrastructure and the rollout of the electric vehicles. Lastly, you have to emphasize on the recycling, क्योंकि these vehicles are majorly dependent upon the lithium batteries। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी बन जाता है कि आपको रिसाइकल करना है, और यहीं पे आप सोर्स की भी बात कर सकते हैं, that where are you gonna get such amount of lithium for the construction of lithium technology based batteries। अब lithium की अगर हम बात करें तो इंडिया largely dependent है on the country like China for the lithium। as of now हमने recently देखा था कि India has also using or leveraging its India's foreign policy, we have gone to the Latin America, we are in the talking terms with the Chile, with the Brazil, Argentina, so as to procure lithium, cobalt from those countries। लेकिन again you have to understand कि आप अपने इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, रिड्यूस नहीं कर सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर डिपेंडेंट ऑन लिथियम जो इंडिया में नहीं है। कर्नाटका में रिसेंटली थोड़े बहुत सोर्सेज मिले हैं, लेकिन अगेन दैट इज नॉट ऑफ हाई और एक्सेप्टेबल क्वालिटी, तो वी कैन नॉट रिलाई ऑन आर डोमेस्टिक सोर्सेज। अब चाइना के साथ भी हम विटनेस कर रहे हैं फ्री फॉल इन द रिलेशंस, तो चाइना कैन ऑल्सो प्ले विद द लिथियम, विद द रेट्स ऑफ लिथियम। अगर हम लैटिन अमेरिका कंट्रीज की बात करें तो 70% ऑफ द लिथियम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना। हाउ? एक तो चाइना के पास खुद के रिजर्व्स हैं, सेकेंडली जो दूसरी कंट्रीज के रिजर्व्स हैं वहां पे भी चाइना के स्टेक्स हैं। सो चाइना कैन plug, or China can, you can understand that China can nudge those countries to not to supply lithium to India, or at least not to supply to India at a cost effective rate। तो ये मेजर रीजन है कि हम लिथियम पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं फॉर द लॉन्गर टाइम।
तो हमें ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज यहाँ पे फाइंड करनी है। तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल आया है कि हम ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज की तरफ आगे बढ़ेंगे, लाइक मेटल एयर, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, मेटल आयन, जो हम खुद से प्रोड्यूस कर सकें, हमें इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, एंड स्पेशली ऑन द चाइना। So here Niti Aayog has also invited or has collaborated with the IITs of India, और इसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके पहले वाला जो आर्टिकल हमने डिस्कस करा था आई थिंक 2 हफ्ते पहले, उसमें हमने देखा था दैट देयर आर कंपनीज लाइक द टेस्ला एंड इवन माइक्रोसॉफ्ट, टोयोटा, टेस्ला, टोयोटा एंड इवन माइक्रोसॉफ्ट जो फंक्शन कर रहे हैं ऑन द न्यू सेट ऑफ बैटरीज। तो इनके साथ इंडियन इंडस्ट्री कोलैबोरेट कर सकती है, एंड हियर गवर्नमेंट कैन प्ले अ रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर। तो ये एक ब्रीफिंग है ऑन द एंटायर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, ऑल्सो कॉल्ड एज द NEMM। इसमें फर्दर 2 स्कीम्स गवर्नमेंट ने रिलीज करी हैं, एक है फेम फेज 1 और फेम फेज 2। तो ये सारी चीज़ें हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ये सिर्फ एक वैल्यू एडिशन था आप लोगों के लिए। ओके, हियर द आर्टिकल इज ऑन द क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी बिल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने वाली है, पता नहीं इस बार इंट्रोड्यूस होगा या नहीं, मुझे लग नहीं रहा है कि इस बार इंट्रोड्यूस होगा, लेट्स सी। तो जब भी बिल इंट्रोड्यूस होगा हम बिल के प्रोविजंस को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, क्रिप्टो करेंसीज के रिलेटेड जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो भी इशू इन्वॉल्व है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। ये आर्टिकल्स को आप एक बार क्विकली रीड कर सकते हैं। दिस इज फ्रॉम द हिंदू, दिस इज द एडिटोरियल टुडे ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर, और दूसरा इंडियन एक्सप्रेस में आया है। तो ये दोनों आर्टिकल्स को आप एक बार क्विकली रीड कर सकते हैं, आपका एक बैकग्राउंड क्रिएट हो जाएगा एटलीस्ट। बाकी आप बेफिक्र तो रहिए, बिकॉज जब भी ये आर्टिकल आएगा, जब भी ये बिल प्रोड्यूस होगा तो हम उसके की प्रोविजंस डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ आज तो हम इसके प्रोविजंस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि क्रिप्टो करेंसीज के बिल में क्या मेंशन्ड है। सो द गवर्नमेंट इज प्लानिंग हियर टू बैन ऑल द प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज एक्सेप्ट फॉर द फ्यू। तो कुछ क्रिप्टो करेंसीज रहेंगी जिनको गवर्नमेंट बैन नहीं करेगी। अपार्ट फ्रॉम दोज सर्टेन क्रिप्टो करेंसीज, गवर्नमेंट सारी अदर क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर देगी। ऑल्सो गवर्नमेंट इज प्लानिंग हियर टू कम अप और लॉन्च इट्स ऑफिशियल डिजिटल करेंसी, जो बेसिकली RBI के थ्रू लॉन्च करेगी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या हमें बैन करना सही है। तो इसको काफ़ी एक्सपर्ट्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर दैट ऑलरेडी अ प्रोविजन हैज बीन मेंशन्ड इन द बिल कि हम सारी क्रिप्टो करेंसीज को बैन नहीं करेंगे। नाउ देयर आर मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज इन द सेंस द डिजिटल करेंसी विच फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर के बेसिस पे वो फंक्शन करती हैं, और इनका कोई भी डबल यूज नहीं कर सकता है, इनकी माइनिंग करनी पड़ती है, एंड सो ऑन। इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं और काफ़ी सारे नुकसान भी हैं। नुकसान में ये है कि दीज करेंसीज आर लार्जली यूज्ड फॉर द इलिसिट और क्रिमिनल एक्टिविटीज, स्पेशली ऑन द डार्क नेट, and because there is no regulation, because there is no central authority on these cryptocurrencies, as they are heavily decentralized owing to the blockchain technology, so it becomes more vulnerable to their use in the illicit or criminal activities. इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे फंक्शन करती है, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो मार्केट फोर्सेस इसके प्राइस को डिटरमाइन करता है। Now the price of the cryptocurrency, especially the Bitcoin, has significantly shot up because the investment here has been done by the Tesla, and also few of the credit card companies have said that we will be now investing in the Bitcoin. तो इसके कारण Bitcoin को काफ़ी हद तक पुश मिला है। अब Bitcoin को क्योंकि पुश मिला है तो क्रिप्टो करेंसी का जो बिल है जो इंडिया में प्रपोज होने वाला है उस पर भी अब कंसर्न्स रेज हो रहे हैं कि आप बैन करने की बात कर रहे हो क्रिप्टो करेंसीज को। सो हियर गवर्नमेंट हैज सेड इट वेरी क्लियरली कि हम सारी क्रिप्टो करेंसीज को बैन नहीं करेंगे, सर्टेन क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनको हम बैन करेंगे और बाकियों को हम रेगुलेट करेंगे। सो दैट इज अ गुड ऑप्शन दैट यू आर नॉट बैनिंग ऑल द क्रिप्टो करेंसीज बट आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट रेगुलेशन ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज along with the launching of an official cryptocurrency, a digital currency of our own country, that is will be launched by the RBI. तो ये एक बेसिक मैंने आपको एक फ्रेमवर्क बताया, बेसिक आइडिया बताया कि क्या होने वाला है इस बिल के थ्रू, राइट। बाकी डिटेल में हम लेटर ऑन देखेंगे जब ये
बिल प्रोड्यूस होता है, एटलीस्ट डिस्कशन इस पे होता है इन द पार्लियामेंट। ओके, ओटीटी प्लेयर्स के ऊपर भी काफ़ी टाइम से स्क्रूटिनी है गवर्नमेंट की। लास्ट ईयर 2020 में, आई थिंक इन द मंथ ऑफ नवंबर, गवर्नमेंट सेड दैट वी आर नाउ शिफ्टिंग द रेगुलेटरी एम्बिट ऑफ द ओटीटी to the Ministry of Information and Broadcasting from the MeitY Ministry, that is Ministry of Electronics के पास था पहले ये इसका रेगुलेशन। तो गवर्नमेंट ने OTT का रेगुलेशन शिफ्ट कर दिया फ्रॉम दिस मिनिस्ट्री टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जहाँ पे बाकी सारे रेगुलेशंस भी किए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द न्यूज़, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सो ऑन। OTT की अगर हम बात करें तो OTT इंडिया में एज ऑफ नाउ 500 करोड़ का मार्केट है एंड मोर देन 170 मिलियन इसका सब्सक्राइबर बेस है, विच इज स्टेडीली ग्रोइंग। द मेजर इशू behind the OTT platform over the top platform is unregulated content which is said to be vulgar, which is said to be offensive in nature। तो इसको हमें रेगुलेट करना है, ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। तो गवर्नमेंट ने बोला था कि हम इनको शिफ्ट कर रहे हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड IB, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। लेटर ऑन वी विल कम अप विद अ रेगुलेशन कोड, हम रेगुलेशन कोड को नोटिफाई करेंगे। तो ये पूरा जो इशू था, इसका एक बैकग्राउंड भी था कि OTT को पहले भी गवर्नमेंट ने कहा था कि आप एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी क्रिएट करो ऑन द लाइंस ऑफ द न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स ने जो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी अपनी सेल्फ रेगुलेशन के लिए क्रिएट करी, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। और ये जो न्यूज़ है ये बोलती है कि OTT प्लेटफॉर्म्स ने 17 मेजर प्लेयर्स ऑफ द OTT हैव एक्सेप्टेड और हैव कम आउट विथ अ टूल किट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियसली रिलीज्ड सेल्फ रेगुलेशन रिलेटेड गाइडलाइंस। तो इन्होंने खुद डिसाइड किया था कि हम अपने आप को कैसे रेगुलेट करेंगे, तो उसकी इन्होंने टूल किट को रिलीज करा है। क्यों करा है? ताकि गवर्नमेंट को ये दे कैन प्रोवाइड अश्योरेंसेस टू द गवर्नमेंट दैट वी आर इन अ मच बेटर पोजिशन टू रेगुलेट आवरसेल्व्स। देयर इज नो नीड फॉर यू टू कम इनटू आवर डोमेन एंड रेगुलेट अस। Please allow us to self-regulate. And see, now we have come up with a toolkit. You can go through the toolkit and drop the idea of coming up with the notification of regulation of the OTT. So this is the basic reason. क्या बोला है इसमें इन लोगों ने? तो इसमें इन लोगों ने बोला है कि हम एक इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सेक्रेटरीट बनाएंगे। ये अपेक्स बॉडी होगी जो रेगुलेशन करेगी। देन हम एक फीडबैक मैकेनिज्म भी बनाएंगे so as to take the feedback of the Ministry of Information and Broadcasting। तो the Ministry of Information and Broadcasting को कोई भी हमें सजेशन देने हैं, so they can give that, and apart from that there would be a grievance redressal mechanism also। तो ये कुछ सर्टेन इन्होंने बातें करी हैं, बट अगेन ये एक बहुत ही अभी इमेच्योर न्यूज़ है, अभी ये मैच्योर नहीं हुई है। सो इट इज़ जस्ट एन अपडेट यू कैन से। तो आपने जो एक नोट्स बना के रखे हैं ऑफ दी OTT हमारे पुराने डिस्कशंस के बेसिस पे, उसमें बस आप ये एक चीज़ ऐड कर सकते हैं दैट नाउ दे हैव कम अप विद अ टूल किट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, राइट। एंड एक और हमने अपडेट देखी थी कुछ टाइम पहले दैट द फर्स्ट रेगुलेशन डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ IB of the OTT platform was with respect to a web series called as तांडव on the Amazon Prime। तो ये पहला इंसिडेंट बना था जब गवर्नमेंट ने रेगुलेट करा है कंटेंट को ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव वी विल टॉक हियर अबाउट अ डिजीज कॉल्ड एज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। अभी इसके काफ़ी सारे केसेस कर्नाटका में आए हैं। अब ये जो डिसीज है पहले इसको समझ लेते हैं ये है क्या बेसिकली। तो ये इट बेसिकली डिस्ट्रॉयज अ बेबीज मसल कंट्रोल। दैट इज एक जो बच्चा है उसके मसल्स पे उसका कंट्रोल लूज हो जाता है बिकॉज हिज नर्व सेल्स आर लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इसको हम SMA बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो SMA के कारण नर्व सेल्स अफेक्ट होते हैं, नर्व सेल्स लूज होना चालू हो जाते हैं, कम होना चालू हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ विच
मस्कुलर कंट्रोल लूज हो जाता है। अगर एक बच्चे को टर्न करना है तो वो टर्न नहीं कर पाएगा, अपने हैंड्स मूव करने हैं तो वो नहीं कर पाएगा, एंड इवन अगर उससे कोई फूड को सोलो करना है तो वो सोलो भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज मसल कंट्रोल उसके पास नहीं है। एंड दिस काइंड ऑफ डिसीज, दिस पर्टिकुलर डिसीज इवेंचुअली लीड्स टू डेथ। तो इसका इलाज है डेफिनेटली, बट इट कॉस्ट 16 करोड़ रुपीज। जो थेरेपी है इसकी, जीन थेरेपी, इट कॉस्ट 16 करोड़ रुपीज। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट। और ये थेरेपी में होता क्या है, तो ये थेरेपी बेसिकली जो जीन प्रिंट्स होते हैं, जीन कॉपीज होती हैं। देखिए होता क्या है कि अगर आपको मसल का मूवमेंट करना है, नर्व सेल को अगर कम्युनिकेट करना है विद अ पर्टिकुलर मसल, तो दे कम्युनिकेट विथ द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, और यहाँ पे जीन्स के थ्रू कोड्स जनरेट होते हैं। ये कोड्स आते हैं इन अस फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम मदर एंड फ्रॉम आवर फादर। अब फादर और मदर के किसी का भी एक कोड फॉल्टी होता है या दोनों के फॉल्टी होते हैं, तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम अराइज होती है, ये डिसीज जनरेट होती है। अब ये फॉल्टी कोड को रिप्लेस करती है ये थेरेपी, जीन थेरेपी, और नर्व सेल्स को वापस रीएक्टिवेट कर देती है। लेकिन ये कितनी कॉस्टली है, 16 करोड़ रुपीस की। तो फिल्म्स पर्सपेक्टिव से बस आप याद रख सकते हैं कि व्हाट इज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, वेयर द नंबर ऑफ केसेस वर रिसेंटली सीन इन न्यूज, सो इट वाज सीन इन कर्नाटका, राइट। और इस थेरेपी का नाम है ज़ोलजेंस्मा, ज़ोलजेंस्मा, ठीक है। ओके, GLOF, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो हमने कुछ टाइम पहले सेम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट देखी थी कॉल्ड एज CEEW, जिसने ओवरऑल पैन इंडिया लेवल पे बताया था दैट 75% ऑफ द इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स हैव बिकम वल्नरेबल टू द एक्सट्रीम क्लाइमेट वेदर इवेंट्स। इसके साथ माइक्रो क्लाइमेट पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, एंड ओवरऑल इंडिया का क्लाइमेटिक पैटर्न भी चेंज हो रहा है। जहाँ पहले ड्रॉट्स थी वहाँ आज फ्लड्स आ रही हैं, जहाँ पहले फ्लड्स थी वहाँ ड्रॉट्स आ रही हैं। और एक यूनिक फिनोमेना हमने देखा था ऑफ द गया डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, जहाँ पे एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट में, आधे डिस्ट्रिक्ट में ड्रॉट थी और आधे डिस्ट्रिक्ट में फ्लड थी। फॉर द फर्स्ट टाइम दिस काइंड ऑफ यूनिक फिनोमेना वाज ऑब्जर्व्ड। नाउ दिस रिपोर्ट वाज गिवन टू अस बाय द CEEW कॉल्ड एज काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसने सेम एक ही उसी टाइप की रिपोर्ट पब्लिश करी है ऑन दी उत्तराखंड, एंड दिस कैन बी यूज्ड बाय यू इन दी GLOF। तो हमने काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ पे डिस्कस करे, वे फॉरवर्ड डिस्कस करा, राइट। उसमें आप सब्सटैंशिएट करने के लिए अपने पॉइंट्स को इस रिपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये द हिंदू में आई है आज, ये आर्टिकल भी द हिंदू का है आज, सॉरी ये इंडियन एक्सप्रेस का है, और ये द हिंदू का आर्टिकल है आज का। तो ये बोलती है कि 85% ऑफ उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट्स हॉटस्पॉट्स ऑफ एक्सट्रीम फ्लड रिलेटेड इवेंट्स। बस हेडिंग ही आपको याद रखनी है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। माइक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या किया जा सकता है उसकी बात करी गई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट, एडेप्टिव रिसिलियंट कैपेसिटीज, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ की आपको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, उनको आपको एक इंटीग्रल पार्ट बनाना है ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्लानिंग। इसके साथ साथ यहाँ पे एक आर्टिकल आया है, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड में हमने पहले भी देखा है कि GLOF में दो टाइप के वे फॉरवर्ड होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल मेजर्स, एक होता है नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। स्ट्रक्चरल मेजर्स में आप बात करेंगे इंजीनियर्ड सॉल्यूशंस की, जहाँ पे यू हैव टू इंश्योर controlled outflow of the water from the glacial lakes so that there is not sufficient water in the glacial lakes। जब पानी ही sufficient नहीं होगा तो जब भी glacial lake की outburst होगी तो डैमेज नहीं होगा in the downstream regions। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में हमने देखा था कि आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, मैपिंग करना है, सैटेलाइट बेस्ड सेंसर रेडार टेक्नोलॉजी का आपको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हमें लोकल कम्युनिटी को ट्रेन करना है, बिकॉज रिलीफ ऑपरेशंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बिकॉज ऑफ द इनएक्सेसिबल टेरेन एंड सो ऑन। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। सेंदाई फ्रेमवर्क की हमने बात करी थी, CDRI की हमने बात करी थी, DRR आपको पता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में
ये सारी चीज़ें हम डिटेल में ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर भी एक बार मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे एक बार गो थ्रू आप कर लीजिएगा। क्लाइमेट प्रूफिंग की आप बात कर सकते हैं, रीअसेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर की आप बात कर सकते हैं। देखिए वे फॉरवर्ड में चोपड़ा कमेटी मैंने आपको बताया था, चोपड़ा कमेटी को आपको ड्रॉप करना है। चोपड़ा कमेटी 2014 में सेटअप करी गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर दी उत्तराखंड फ्लड्स। तो चोपड़ा कमेटी ने भी एम्फोसाइज किया था ऑन दी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं दे आर डेट्रीमेंटल to the entire Himalayan ecosystem and can lead to such kind of events in the later future. शायद नेक्स्ट आर्टिकल वही है, या दिस इज द आर्टिकल ऑफ द चोपड़ा कमेटी। सो ही इज चोपड़ा who basically was the chairperson of this committee। और यहाँ पे उतने खैर खास पॉइंट्स नहीं है इस आर्टिकल में, लेकिन इन्होंने क्या मेजर रिकमेंडेशन दिया था वो आप देख सकते हैं। लाइक आर की रिकमेंडेशन वॉज दैट मोस्ट ऑफ द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स प्रपोज्ड बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट बी ड्रॉप्ड। मोस्ट ऑफ द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स शुड बी ड्रॉप्ड। दिस वॉज द रिकमेंडेशन ऑफ द चोपड़ा कमिटी, रवि चोपड़ा। एंड he also recommended that why do you have to rely on the hydropower potential when already solar power has become very much cost effective। so solar power की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं because it is now more cost effective than the hydropower potential or hydropower electricity। so this was a recommendation given by the चोपड़ा कमेटी, जिसको आप वे फॉरवर्ड में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इन आर्टिकल्स को एक बार गो थ्रू करेंगे आप along with the set of articles जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं on the channel PrepNuts टेलीग्राम पे। तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स हो गए हैं हमारे पास, आई थिंक 7 से 8 आर्टिकल तो हो ही गए होंगे। और इसके अलावा भी मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कशन किया है, ग्लेशियर लेक क्या होती है, आउटबर्स्ट के फैक्टर्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल ट्रिगर मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, वे फॉरवर्ड में स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल, इसमें फिर हमने डिजास्टर मैनेजमेंट में जो चीज़ें पढ़ी थी वो सारी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ओके, ट्विटर और गवर्नमेंट का स्टैंड ऑफ काइंड ऑफ अ सिचुएशन मेंटेन्ड है। तो ये आर्टिकल भी आप एक बार क्विकली रीड कर सकते हैं। मैंने आपको इनका कॉन्टेक्स्ट बता दिया है। 2 पर्सपेक्टिव से आपको रीड करना है इन आर्टिकल्स को। एक, बैलेंसिंग ऑफ द पावर बिटवीन द टेक जायंट्स एंड गवर्नमेंट। एक अप्रोच है कि गवर्नमेंट बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। देखिए यहाँ पे आप देखिए, whether it is Twitter, Facebook or LinkedIn, I have a message for all of you. Come work in India and earn money, but you will have to follow India's laws. So what we are trying to do, we are trying to balance the power of India as a state with that of the tech giants on the lines of the Australian approach, जो ऑस्ट्रेलिया करने की कोशिश कर रहा है। तो एक इस पर्सपेक्टिव से आपको रीड करना है इस इशू को। सेकेंड है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से भी आप इसको रीड कर सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट इज नाउ हैज बिकम मोर एक्टिव इन कर्बिंग द अपोजिशन वॉइस, डिसेंट ओपिनियंस एंड इट हैज बिकम इनटॉलरेंट ऑफ द क्रिटिसिज्म, तो उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं बाय गिविंग दिस सेट ऑफ एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल को आप 2 जगह यूज कर सकते हैं, एक इस जगह और दूसरा मैंने आपको बताया इनटॉलरेंट एटीट्यूड ऑफ और बिहेवियर ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट जर्नलिस्ट के अगेंस्ट भी सेंट्रलाइज्ड एजेंसीज का यूज कर रही है, लाइक CBI, ED, NIA, विच इज नॉट वेरी मच कॉमन इन इंडिया कि आप सेंट्रलाइज्ड एजेंसीज का यूज कर रहे हो जर्नलिस्ट पे, कॉमेडियंस पे आप ड्रैकोनियन एक्ट्स लगा रहे हो, सिडिशन एक्ट का आप इस्तेमाल कर रहे हो, राइट। तो ये सारी चीज़ों पे आप इस एग्जाम्पल को एज ए यूज कर सकते हैं कि ट्विटर के अगेंस्ट भी गवर्नमेंट ने काफ़ी फोर्स किया था कि आप अकाउंट्स को सस्पेंड करो, एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट दैट वाज अगेंस्ट द आर्टिकल 19। फाइन। ओके, कल मैंने आपको एक अपडेट दिया था ऑन द इंडिया चाइना LAC स्टैंड ऑफ। तो उसी अपडेट पे यहाँ पे डिटेल्ड एक एडिटोरियल आया है। प्लीज़ इस एडिटोरियल की डिटेल्स में मत जाना, आपको कोई ज़रूरत नहीं है जानने की कि फिंगर 8 है, फिंगर 7 है, फिंगर 6 है कि क्या है। इतना डिटेल में UPSC नहीं पूछने वाला है।
आपको सिर्फ की इश्यूज पता होने चाहिए कि स्टैंड ऑफ क्यों हुआ, कहाँ हुआ, क्या बैकग्राउंड है उसके पीछे, जॉनसन लाइन, मैकडोनल्ड्स लाइन, ईस्टर्न में मैकमोहन लाइन, शिमला एग्रीमेंट, the approach adopted by the China, that is the assertive attitude, reflective not only on the western border with India but also on the eastern front and the southern front, that is in the South China Sea, etc. Recent changes done by the China in its CMC and its defense policy, which clearly shows that it has become more assertive. इसके साथ साथ the infra developmental work taken up by the India, which has clearly offended China. Article 370 has offended China. तो ये आई एम सॉरी, तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे आपने एम्फोसाइज करना है. अब ईस्टर्न लद्दाख में पैंगोंग सो में कौन सी फिंगर पे स्टैंड ऑफ मेंटेन्ड है, इतनी डिटेल्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है, इफ टाइम परमिट्स एंड इफ देयर इज एन इंटरेस्ट ऑफ योर्स इन्वॉल्व, तो इस आर्टिकल को आप रीड कर सकते हैं. बहुत ही ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन है. बेसिकली 8 फिंगर्स हैं पैंगोंग सो पे. पहली 4 फिंगर्स तक इंडिया पेट्रोल कर पाता था और क्लेम करता था अप टू फिंगर 6. जो चाइना है उसने ये 4 फिंगर्स पे रोड्स डेवलप कर ली, तो इसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया इंडिया का मूवमेंट, और जो स्टैंड ऑफ था वो यहीं पे सारा मेंटेन था. तो अब इन्होंने डिसएंगेजमेंट किया है ऑफ द इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर ऑफ द ट्रूप्स, और ये डिसाइड किया है कि जो इंडिया है वो फिंगर 3 पे मूव करेगा और जो चाइना है वो फिंगर 8 पे मूव करेगा. तो 4 to 8 के बीच में जो कंटेस्टेड एरिया है वो अब एक बफर जोन की तरह ऐड करेगा. और इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन अक्वायर कर ली थी कैलाश रेंज पे. एक हाइटेंड पीक है, तो वहाँ से फिंगर 8 तक के जो एरिया है, रीजन है, दैट केम इन आर ऑब्जर्वेशन. सो दैट वॉज एन स्ट्रेटेजिक पोजीशन. उसको इंडिया अब अबैंडन कर देगा और ट्रूप्स अब पेट्रोल नहीं करेंगे एटलीस्ट फॉर द 3 to next 4 weeks. तो दिस इज द की टर्म्स ऑफ द डिसएंगेजमेंट. लेकिन अभी ये फाइनलाइज हुआ है या नहीं, क्या चाइना इस पे अडियर करेगा? नो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू ट्रैक ऑन, राइट. तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, पढ़ो और आगे बढ़ो, ना नोट बनाना है ना कुछ करना है. ओके, म्यांमार का इशू हमने डिस्कस किया था कि मिलिट्री रूल वहाँ पे दोबारा लग गया है थ्रू द मिलिट्री कूप, and US other countries definitely have got offended because of the development out there. एक तो चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, चाइना का जो रिलेशन है विद द मिलिट्री ऑफ म्यांमार वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. म्यांमार का डिपेंडेंस ऑन चाइना इज़ अबाउट 34% इन टर्म्स ऑफ इट्स एंटायर ट्रेड. सो डेफिनेटली द कंसर्न्स आर देयर फॉर द कंट्रीज लाइक USA, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, बट ऑल्सो फॉर द इंडिया. तो यूएस ने यहाँ पे सैंक्शंस लगाए हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम यूएस न्यूजीलैंड ने सैंक्शंस लगाए हैं. यूरोपियन यूनियन कंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं अब टू कम अप विद द इकोनॉमिक प्रेशर्स, अगेन द इकोनॉमिक सैंक्शंस अगेंस्ट म्यांमार मिलिट्री जनरल्स ऑफ म्यांमार, सो एज टू प्रेशराइज देम टू अगेन एम्ब्रेस द डेमोक्रेटिक प्रोसेस. क्योंकि 2020 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी ऑफ द सू की पार्टी कॉल्ड एज NLD, जिसके कारण बेसिकली सब कुछ हो रहा है वहाँ पे. तो ये एक अगेन छोटा सा अपडेट है, क्योंकि हमने इशू को डिस्कस किया था डिटेल में, तो आपको एक अपडेट आपके पास होना चाहिए. और इसके साथ जुड़ा हुआ एक लिमिटेशन भी होना चाहिए. क्या है वो लिमिटेशन? कि म्यांमार की डिपेंडेंसी इज ऑन चाइना एंड इट हैज़ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ट्रेड विद द US एंड EU. उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप उस पर सैंक्शंस लगा दोगे तो. एंड इफ चाइना कंटिन्यूज टू गिव सपोर्ट टू द म्यांमार, चाइना हैज नॉट एक्सेप्टेड और इवन हैज नॉट यूज द वर्ड मिलिट्री कूप. It has said that there is a kind of instability in Myanmar which should be resolved peacefully. So you can clearly see the nexus between the military of Myanmar and that of China. यहाँ पे लूजर कौन होगा? सबसे बड़ा इंडिया.
because it is in our neighborhood, right? So these were some of the articles to be discussed with you all today. किसी को कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल कॉल इट अ डे. सब्सक्रिप्शन में अगर आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना है तो प्लस के साथ ऑप्शनल भी आप ऑप्ट कर सकते हैं. एक साल का 70,000 है, 10% ऑफ आपको मिल जाएगा, तो 63,000 के आसपास पड़ेगा. और अगर आइकॉनिक के साथ आप ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेते हैं द एनुअल प्राइस वुड बी 88,000, 10% ऑफ 80,000 के आसपास आपको एनुअल प्राइस पड़ेगी. 10% ऑफ सिर्फ आपको फरवरी मंथ में मिलेगा. मार्च ऑनवर्ड्स डिस्काउंट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 5% ओनली, राइट? रुचि, व्हाट आर यू सेइंग? किस आंसर में लिखना है आपको, क्या लिखना है? हाउ कैन वी राइट दिस इन आंसर्स? आई डिड नॉट गेट यू. ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है, सो लेट अस कॉल इट अ डे. थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंट लिसनिंग. हैव अ ग्रेट डे अहेड.